Good evening, students. We know that pure water is neutral in nature. That is, the concentration of hydronium ions and hydroxyl ions are equal. And the concentration of both these ions are 10 to the power minus 7 moles per liter. The product of the concentration of these ions, कौन से ions? हाइड्रोनियम ions और हाइड्रोक्सिल ions, इन दोनों के concentration का product is equal to 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7, which is equal to 10 to the power minus 14 mole square per liter square at 25 degrees Celsius, and this product is called ionic product of water. It is represented as Kw. It is the ionic product of water. Means ion water के जो दो ions हैं H3O plus और OH minus ions, इन दोनों के concentration का product है. We also know that acids give H plus ions in water. Thus, when an acid is dissolved in water, the concentration of hydronium ions increases, but it also contains a less concentration of hydroxyl ions. Similarly, bases gives hydroxide ions. When a base is dissolved in water, the concentration of hydroxyl ions in it increases, although it contains less concentration of hydronium ions. Thus, we can say that acidic or basic solutions both contain H plus ions or H3O plus ions. एसिडिक हो या सॉल्यूशन या फिर बेसिक हो, दोनों में ही H3O प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं. किसी में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो किसी में कम प्रेजेंट होते हैं. और इसीलिए सोरेनसन ने, एक केमिस्ट थे सोरेनसन, विच इज अ डैनिश केमिस्ट. Sorensen, SPL Sorensen. It is Soren Peter Lorentz Sorensen in 1909 devised a scale called pH scale, on which the strength of acidic and basic solutions can be represented by using the hydrogen ions concentration present in that solution. pH in Danish language, it stands for potens the hydrogen, which means power of hydrogen ions or power of hydronium ions. It is defined as the negative logarithm to the base 10 of hydrogen ions concentration. That is, pH is equal to minus log H plus to the base 10. Suppose a solution having H plus concentration of 10 to the power minus 9 moles per liter. So pH will become now minus log 10 to the power minus 9 to the base 10. It will be minus 9 log 10 to the base 10, 9 into 1, because minus minus plus 9 and the value of log 10 to the base 10 is 1. So the pH of a solution कितना आ गया हमारा 9. इस solution का pH होगा 9. Sorensen connect the hydrogen ions concentration of acidic and basic solutions to the numbers 0 to 14 on a pH scale. इस pH scale में 0 से 14 तक के numbers थे. And the pH of a solution is inversely proportional to the hydrogen ions concentration present in it. pH inversely proportional है hydrogen ions concentration के. That means कि अगर किसी solution में hydrogen ions concentration की value ज़्यादा है तो उसकी pH value कम होगी, और अगर hydrogen ion concentration कम है तो pH value ज़्यादा होगी. Inversely proportional होते हैं तो. The strength of an acid or a base is measured on a scale called pH scale. On this scale 0 से 14 तक के numbers होते हैं. For neutral solutions pH value is exactly 7. अगर कोई solution nature में neutral है तो उसकी pH value exactly 7 होगी. Sugar solution, pure water, sodium chloride solution, they are neutral substances. That is, the pH of each of these is 7. इन सब की pH value 7 होगी.
और ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो ना तो लिटमस से अफेक्ट होंगे ना ही किसी कॉमन इंडिकेटर से इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. फॉर एसिडिक सॉल्यूशन द पीएच वैल्यू इज लेस देन 7. अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आएगी, और जितनी ज्यादा कम होगी उसकी वैल्यू दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में. For example, a solution having pH 2 is much more acidic than a solution having pH 6. A solution of having pH 0, 1, 2 and 3 are considered to be strong acids, while those having pH 4, 5 and 6 are considered to be weak acids. The lower the pH value, the more acidic the solution is. जितनी कम होगी पीएच वैल्यू उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा नेचर में. फॉर बेसिक सॉल्यूशंस द पीएच वैल्यू इज मोर देन 7. अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, और जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसका बेसिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा. For example, a solution having pH 14 is much more basic than the solution having pH 10. तो जितना ज्यादा नेचर में बेसिक होंगे वो सब्सटेंस इनकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी. द हायर द पीएच वैल्यू द मोर बेसिक द सॉल्यूशन इज. बट सॉल्यूशंस ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स or solutions of all strong bases are not equally strong. Solution सभी एसिड के या सभी बेसिस के इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. इनके बेटा अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी कॉमन इंडिकेटर से पता नहीं किए जा सकते हैं. In order to find out the relative strength of these acidic or basic solution, we use a special kind of indicator which is known as universal indicator. A universal indicator is a mixture of a number of indicators. It gives different pH values and it gives different colors at different pH values. अलग-अलग pH value पे ये different color produce करते हैं. When an acid or a basic solution is added to the universal indicator, that universal indicator gives a new color. और वो जो नया कलर मिलेगा हमें, it is matched with the universal pH color chart. उस कलर चार्ट से मैच करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर चार्ट से मैच किया जाएगा उसके कलर को, और जिस कलर से मैच होगा डेट मीन्स कि उसकी पीएच वैल्यू उतनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की उतनी होगी, हम पता कर सकते हैं. इसकी पीएच वैल्यू पता करने के लिए सिंपली जो पीएच पेपर आते हैं उनको हमने स्ट्रिप कराया है, उनको हमने डिप कराया है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, और उस यूनिवर्सल पीएच पेपर को हम डिप करेंगे उस सॉल्यूशन में जिसकी हमें पीएच वैल्यू पता करनी है, और डिप करने के बाद जो कलर आएगा उस इंडिकेटर में उस कलर को नोट करके वी कैन फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन. और डिफरेंट पीएच वैल्यूज के डिफरेंट कलर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन कलर आया दैट मीन्स कि द पीएच वैल्यू इज 7, न्यूट्रल इन नेचर. अगर डार्क रेड है दैट मीन्स कि उसकी पीएच वैल्यू 0 है. रेड है तो पीएच वैल्यू 1 है. लाइट रेड है तो पीएच वैल्यू 2 है. इस तरह से पता किया जाता है कि कितनी पीएच वैल्यू है बाय नोटिंग इट्स कलर. कलर नोट करके हम पता करते हैं उसकी पीएच वैल्यू को. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. क्या क्या इम्पोर्टेंस है पीएच के हमारे एवरीडे लाइफ में. तो सबसे पहला हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होता है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ही चलता है एक नैरो पीएच रेंज में. ह्यूमन बॉडी में भी हमारी पीएच वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज तक काम करती है बिटवीन 7 to 7.8. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड, टीयर्स, सलाइवा हैव अ pH of nearly 7.4. If the pH falls below 7 or rises above 7.8, तो survival of living organisms becomes difficult. दिक्कत हो जाएगी तब.
तो इसीलिए एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही हमारे सारे एंजाइम्स भी एक्टिव होते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर पीएच रेंज का होना बहुत ही जरूरी है। एसिड रेन, यू ऑल नो एसिड रेन वाटर भी एसिडिक है क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि एयर में प्रेजेंट है वो डिसॉल्व हो जाते हैं रेन से, और उस जब पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाती है तो उस वाटर को कहा जाता है एसिड रेन। एंड व्हेन दैट एसिड रेन फ्लोस इनटू रिवर्स, वो रिवर वाटर भी एसिडिक हो जाएगा नेचर में, और जब रिवर वाटर भी एसिडिक हो जाएंगे तो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। Plants also require a specific pH range for their healthy growth, जो कि ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही ज्यादा एल्कलाइन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए उनके अच्छे ग्रोथ के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Our stomach produces hydrochloric acid which kills the bacteria which may enter along with the food that we eat। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोड्यूस होना भी ज़रूरी है स्टमक में, और ये हमें हार्म नहीं पहुंचाता है, इट डज नॉट हार्म आवर स्टमक आवर बॉडी। बट अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, हमारे स्टमक में ज़्यादा होने लगे वाइल ओवर ईटिंग और व्हेन वी टेक टू मच ऑफ सम स्पाइसी फूड, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकम्स मोर बियॉन्ड रिक्वायर्ड लिमिट, जितनी लिमिट होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से होता है एसिडिटी। इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग मेडिसिन्स दैट इज विच इज कॉल्ड एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स लिए जाते हैं और इन एंटाएसिड्स में जनरली यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज अ माइल्ड बेस एंड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड, और हमें उस एसिडिटी से रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट इसका टूथ डिके को प्रोटेक्ट करने में भी यूज होता है। टूथ डिके हमारा स्टार्ट होता है हमारे माउथ की पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 जब होती है। टूथ इनेमल, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बट ये कैल्शियम फॉस्फेट भी डिसॉल्व होने लगता है वाटर में जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। तो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं माउथ में वो इसको डिसोल्यूशन करने लगते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का, और इसीलिए बट जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ से, सलाइवरी ग्लैंड से, वो कुछ पार्शियली न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है इस एसिड को जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कराते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड एंड शुगर विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। तो इसको कुछ पार्शियली न्यूट्रलाइज कर देता है हमारा सलाइवा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। बट टूथ डिके से प्रिवेंट करने के लिए वी यूज गुड क्वालिटी टूथपेस्ट एंड दीज टूथपेस्ट कंटेन माइल्ड बेसेस, उनमें भी बेस प्रेजेंट होते हैं जो इन एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके और भी इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर स्टंग बाय अ हनी बी और येलो एंट, देन इट इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन। In order to get relief from that pain, we use some mild base such as baking soda, which neutralizes that acid, and we get relief from that bee stung, और जो भी bees थे उनसे हमें फिर उस पेन से हमें relief मिल जाएगा। That's all for today. In next class we start with salts. Thank you.